سوات کا رہائشی شخص نیشنل پریس کلب کے باہر اونچے درخت پر چڑھ گیا۔ درخت پر چڑھنے والے شخص کا مطالبہ ہے کہ ایاز صادق کو گرفتار کیا جائے۔ اگر ایاز صادق کو گرفتار نہیں کیا گیا تو نیچے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لوں گا، پولیس کو دھمکی۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں احتجاجی شخص کو نیچے اتارنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ سوات کا یہ رہائشی ہے شخص نیشنل پریس کلب کے باہر اونچے درخت پر چڑھ گیا ہے۔ درخت پر چڑھنے والے شخص کا یہ مطالبہ ہے کہ ایاز صادق کو گرفتار کیا جائے۔ اگر ایاز صادق کو گرفتار نہ کیا گیا تو نیچے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لوں گا، پولیس کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات بلال ویک سے جان لیتے ہیں۔ بلال، بتائیے گا آخر یہ شخص جو ہے درخت پہ کیوں چڑھا ہے؟ جی بالکل، یہ سوات کے رہائشی ہے، فضل یوسف اس کا نام ہے اور اس کی عمر جو ہے تقریباً 40 سے 45 سال ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں پچھلے 13 دن سے جو ہے نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاج کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے جو ملک کے خلاف جو ہے بیانات وغیرہ دیے ان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے۔ ایاز صادق کا نام یہ لے رہا ہے کہ اس کو گرفتار کریں گے تو میں نیچے آؤں گا۔ پولیس اور میجسٹریٹ جو ہے یہاں پہ موجود ہے جو ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ نیچے آ جائیں، آپ کے تمام مطالبات جو ہے وہ مان لیے جائیں گے، لیکن وہ شخص نیچے آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک گرفتار نہیں کیا جاتا میں درخت سے نیچے نہیں اتروں گا۔ اور اس وقت جو ہے نیشنل پریس کلب کے سامنے جو ہے پولیس اور میجسٹریٹ یہاں پہ موجود ہے جو ان کو کرین کے تھرو جو ہے نیچے اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا بلال، آخر یہ جو شخص ہیں کافی بزرگ ہیں، تو بتائیے گا یہ چڑھے کیسے ہیں؟ جی، یہ شخص جو ہے اس کے پاس ایک گاڑی ہے جس کے پر مختلف بینر لگے ہوئے ہیں اور اس پہ بینر پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف اور ایاز صادق کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے کیونکہ انہوں نے ملک کے خلاف جو ہے بیانات وغیرہ دیے ہیں۔ اور یہ شخص جو ہے اس کی ابھی تک فیملی کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن یہ انیشیل طور پہ یہ انفارمیشن آئی ہے کہ سوات کا رہائشی ہے اور کافی دنوں سے جو ہے پریس کلب کے سامنے اپنی گاڑی پہ جو ہے احتجاج ریکارڈ کر رہا تھا۔ گاڑی کے اوپر سے مختلف قسم کے بینرز لگائے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ ریسکیو کی ایک وہ کرین یہاں پہ منگوائی گئی ہے جس پہ جو ہے اس کو نیچے اتارنے کی کوشش کی جائے گی۔ اچھا بلال، یہ بھی بتائیے گا، اللہ نہ کرے اگر یہ شخص جمپ کر جاتا ہے تو ریسکیو کی جانب سے نیچے کیا بندوبست کیا گیا ہے، کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ ریسکیو ٹیموں کے پاس یہاں پہ کوئی جال نہیں تھا، صرف ایک ہی طریقہ جو ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس شخص کو نیچے اتارنے کا کہ کرین کے تھرو جو ہے جو بکٹ ٹرین ہوتی ہے جو اس کے تھرو جو ہے اوپر میجسٹریٹ اور پولیس کے اہلکار اوپر جائیں گے اور اس سے بات چیت کریں گے اور اس کو کوشش کریں گے، اس کو کنونس کریں گے کہ وہ نیچے آ جائے، اس کے تمام مطالبات جو ہے وہ مان لیے جائیں گے۔ اور نیچے سے اس کو کنوے بھی کیا گیا ہے اور تھوڑی سی رضامندی جو ہے اس سے بھی ظاہر کی ہے کہ آپ آ جائیں اوپر تو بات کر لیتے ہیں۔ کافی ضدی بزرگ لگ رہے ہیں، بہت شکریہ بلال ویک اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بیگم شمیم اختر کی میت کل لندن سے لاہور لائی جائے گی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو آج 2 بجے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے پیرول پر رہا کیا جائے گا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، اسرار خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بتائیے گا اسرار، کیا تفصیلات ہیں؟ پاکستان محمد نواز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کو انتقال ہوئے آج 5 روز گزر گئے اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی رہائی کے لیے پیرول پر رہائی کے لیے درخواست کی گئی تھی۔ آج یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس درخواست پر عمل درآمد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے احکامات جاری کیے جائیں گے اور 5 روز پر یہ پیرول پر رہائی دونوں رہنماؤں کو دی جائے گی۔ اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر جو ہے جیل حکام پہنچ چکے ہیں اور کارکنوں کی آمد کا سلسلہ تاحال شروع نہیں ہوا، تاہم پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تعینات ہے۔ کوٹ لکھپت جیل کے اطراف میں سیکیورٹی انتظامات بھی مزید سخت کر دیے گئے ہیں اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بعد از نماز جمعہ کارکنوں کی بڑی تعداد یہاں پر اکٹھی ہوگی جو اپنے قائدین کا بھرپور استقبال کرے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسرار، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کس قدر جو ہے یہ انتقام اور نفرت کی جو ہے وہ آگ میں جو ہے یہ ملک کو اور پوری قوم کو جو ہے یہ دھکیل رہے ہیں۔ ملتان میں
इस वक्त तकरीबन 50 के करीब हमारे यूसी चेयरमैन और काउंसलर जो हैं इन्होंने रात गिरफ़्तार किए हैं, और ये अपना नज़र आ रहा है कि आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें ये और ज़्यादा जो है वो क्रैक डाउन जो है वो करने जा रहे हैं। जो किला कुन्ना कासम पार्क है जो कि वेन्यू है मुल्तान में तमाम बड़े प्रोग्राम या जलसों के लिए, उसे इन्होंने जो है वो कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिया है। मैं पूछता हूँ शिबली फराज साहब से कि हुजूर आप तो ये 4 दिन पहले कह रहे थे कि अवाम ने बाइकआउट कर दिया है। अवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, अवाम इनके जलसों में आए ही नहीं है, चंद 100 लोग थे। वो भाई अगर अवाम ने हमारे जलसों का बाइकआउट कर दिया है तो फिर ये तुम्हें किस बात की मुसीबत पड़ी हुई है? ये क्यों गिरफ्तारियाँ हो रही हैं? क्यों ये आपने जो है वो ग्राउंड्स को जो है वो कैद किया हुआ है और उसके इर्द गिर्द जो है वो कंटेनर लगा के जो है उसको बंद किया हुआ है? इससे ये साबित होता है कि आवाम जो हैं वो बावजूद इस बात के कि कोरोना का ख़तरा है, आवाम इसके बावजूद जो है वो अपोजिशन की काल पे लब्बैक कह रहे हैं। आवाम अजहार यकजहती कर रहे हैं। आवाम अपनी जानों को ख़तरे में डाल के भी, कोरोना का ख़तरा ले के भी इस ज़ालिम हुकूमत से निजात चाहते हैं। आवाम ये समझते हैं कि ये जो कोरोना 18 है, ये जो कोरोना गवर्नमेंट है, ये कोरोना 19 से ज़्यादा ख़तरनाक है। आवाम जो है वो अपोजिशन की तहरीक के साथ जो है वो चलने को तैयार हैं और उसके जलसों में आ रहे हैं। यही वजह है कि अब हुकूमत जो है वो जलसों को जो है वो रोक रही है। ये अपोजिशन का इंतहाई पुरअमन बेज़रर जो है ये मरहला था, पहला मरहला था ये जलसों का, जो कि इख्तिताम इसका होगा लाहौर का जलसा इंशाअल्लाह ताला 13 दिसंबर को होगा। तो इन्होंने तो ये जो है ये महाज अराई की जो पोजीशन जो हमारे दूसरे या तीसरे मरहले पे जब फैसला कुन लॉन्ग मार्च होना था, तो उस वक्त जो सूरत हाल पैदा होने का हमें अंदेशा या सूरत हाल का अंदाज़ा था, इन्होंने तो यहीं पे जो है वो सूरत हाल जो है वो पैदा कर दी है। ये ख़ुद हुकूमत जो है ये अपोजिशन की विकेट के ऊपर जो है वो आ गई है, और इससे ये साबित है कि अपोजिशन की PDM की तहरीक के साथ अवाम जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अवाम इंशाअल्लाह ताला बाहर निकलेंगे और इस कोरोना हुकूमत का, इस ज़ालिम, इस बेरहम और यानी इंसानियत की सोच से आरी ये जो हुक्मरान टोला है, इसके ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर आवाम जो है वो अपोजिशन का PDM की तहरीक का जो है वो साथ देंगे। मैं साथ ही ये भी कहता चलूँ कि हर कीमत पे मुल्तान का जलसा होगा। अगर इन्होंने किला कुन्ना कासम पार्क को ना खोला तो फिर पूरे मुल्तान में जलसा होगा, और पूरे मुल्तान में जब जलसा होगा तो उससे जो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स और जो सूरत हाल होगी, जो वहाँ पे जाने वाले कायदीन को ख़तरात लाहक होंगे, उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है इस हुक्मरान टोले पे होगी। और अगर कोई वाक़या हुआ खुदा ना खास्ता तो हमारा FIR में नामज़द मुल्ज़म जो है वो इमरान खान होगा, और हर कीमत पे हम जाएंगे वहाँ पे। और मरियम नवाज़ साहबा जो है वो बिल्कुल तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर को जो है वो मुल्तान पहुँचेंगी। और दूसरा जो अब अगर उन्होंने हमें स्पेस ना दी जलसा के लिए, तो उसके बाद फिर क्या लाहेअमल होगा उसका फ़ैसला तो PDM की क़यादत करेगी। लेकिन मैं PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तरफ से ये पूरी यकीन दहानी करवाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, जो फ़ैसला PDM की क़यादत करेगी मुल्तान के जलसे के मुतबादिल के तौर पे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है भरपूर जो है उसका जो है वो साथ देगी। एक मिनट बात नहीं, आप करना। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करें। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा के लिए शरीफ कॉम्प्लेक्स में तैयारियां की जा रही हैं। मरहूमा की मैयत कल लाहौर पहुँचेगी।
नमाज जनाजा भी कल बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा के लिए शरीफ कॉम्प्लेक्स में तैयारियां की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात ज़िशान सफ्तर से जान लेते हैं। ज़िशान बताइएगा। जी ज़िशान बताइएगा, क्या कर इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, कल बेगम शमीम अख्तर का नमाज जनाजा जो है वो लाहौर में अदा किया जाएगा और इस हवाले से तमाम तर जो इंतज़ामात की तैयारियां हैं वो जारी हैं, आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। बेगम शमीम अख्तर की डेड बॉडी जो है, उनका जस्द खाकी जो है वो आज लंदन से रवाना होगा और कल लाहौर पहुंचेगा, जिसके बाद नमाज ज़ोहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि बाद नमाज ज़ोहर जो है उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। इस हवाले से तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड में देखे जा रहे हैं और वहाँ पे खारदार ताड़ें भी लगाई गई हैं और इसके साथ साथ वहाँ पे जो लोहे की शीट्स हैं वो एक बैरियर की सूरत में लगाई गई हैं, जहाँ पे VIPs होंगे, जहाँ पे सियासी सीनियर रहनुमा जो हैं वो होंगे और इसके साथ साथ जो शरीफ ख़ानदान के अजीज़ व अकारिब हैं उनको सिर्फ जाने की इजाज़त होगी। इसके साथ जो आवाम है या फिर कारकुनान की तादाद जिन्होंने नमाज जनाजे में शिरकत करनी है उनके लिए अलहदा से पार्टीशन की गई है, वो ग्राउंड में अपना जो है नमाज जनाजा अदा करेंगे और इसके साथ साथ जो तैयारियां हैं वो अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। इस हवाले से जो ग्राउंड की सफाई सुथराई है वो भी की जा रही है। करीब जो तमाम एरिया है उसको लोहे की जो बाड़ें होती हैं वो भी लगाई जा रही हैं, इसके साथ साथ चेकिंग भी की जा रही है। तो ये तमाम तर इंतज़ामात अपने आखिरी मराहिल में पहुँच चुके हैं। कल के रोज़ बेगम शमीम अख्तर का जो नमाज जनाजा है वो शरीफ कम्प्लेक्स के ग्राउंड में जो है वो अदा किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात जो हैं वो शिरकत करेंगी। मुस्लिम लीग नून की जो सरबराही लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो भी इस नमाज जनाजे में शिरकत करेंगे। ख़ास तौर पे हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ भी इस नमाज जनाजे में शिरकत करेंगे और इसके साथ साथ जो उनकी पार्टी के दीगर रहनुमा हैं वो भी शामिल होंगे। जी ठीक है ज़िशान, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नए किरदारों की एंट्री, ड्राइवर, करेंसी, कपड़े, खाने और मोबाइल बेचने वालों के नाम भी मंजर आम पर आ गए। सलमान, शहबाज, नुसरत और जवेरिया अली के नाम पर लाखों डॉलर्स की जाली TT वसूली की रिपोर्ट 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। तफसीलात जानते हैं, सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? आज बिल्कुल शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पापड़ फरोश, दूध फरोश और गवाले के बाद नई से नई एंट्रियां अब हो रही हैं। ड्राइवर, कपड़े बेचने वाले, मोबाइल शॉप पर मुलाजमीन समेत दीगर की एंट्रियां जो हैं वो भी मंजर आम पर आ गई हैं। जो नैब रेफरेंस है उस रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के बाहर करेंसी नोट फ़रोख्त करने वाले जो एक शख्स है जिनका नाम महबूब अली बताया जा रहा है, उनके नाम पर 1,03,450 डॉलर की TT सलमान शहबाज के नाम पर वसूल की गई। साथ ही साथ दुबई में एक छोटी दुकान पर काम करने वाले रमीज़ शाहिद महमूद के नाम पर 5,17,336 डॉलर, दुबई में ही छोटी क्लॉथ शॉप चलाने वाले अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर 2,48,756 डॉलर, अदनान नामी जो शख्स कराची में एक सेल्समैन है, 16,000 उनकी तनख्वाह है, उनके नाम पर 1,59,962 डॉलर। इसके अलावा आबिद शाह जो दुबई में ड्राइवर हैं, 3,000 दिरहम के ऊपर काम कर रहे हैं दुबई में ड्राइविंग का, उनके नाम पर 86,900 डॉलर। ख्याल नवाज़ जो मोबाइल शॉप वर्कर हैं उनके नाम पर 53,950 डॉलर। नुमान जो दुबई के अंदर सेल्समैन है उनके नाम पर 48,941 डॉलर, जबकि उमर गुल जो दुबई के अंदर सेल्समैन के तौर पर काम कर रहे हैं उनके नाम पर भी 59,950 डॉलर की जो जाली TT है वो सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज और जवेरिया अली के नाम पर सन 2009 से 2012 के दरमियान लगवाई गई। नैब रेफरेंस रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने ये वाज़ेह किया है कि इन तमाम अफराद से रब्ता किया गया, इनके बयान भी कलमबंद किए गए। इनकी जानिब से बताया गया कि हमने कभी भी किसी सूरत भी शहबाज शरीफ के किसी भी मेंबर से कोई मुलाकात नहीं की, कोई हमारा बिज़नेस टर्म्स और डील्स नहीं है, हमारी आइडेंटिटी को गलत तौर पर इस्तेमाल किया गया है और सब ने ये दरख्वास्त दी है कि हमारी फ़ेक आइडेंटिटी यूज़ करने की वजह से इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। नैब रेफरेंस का ये हिस्सा बना दिया गया है और नए से नए इंकशाफात जो हैं वो मज़ीद मंजर आम पर भी आएंगे। ठीक है सऊद, बहुत शुक्रिया। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज फिर अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं गैर मुंतखब लोगों ने वज़ीर आज़म के गिर्द घेरा डाल रखा है, फैसलाबाद के मुंतखब लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा, एक मरकजी वजारत भी मांग ली। वो फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। PTI की हुकूमत की जो मुफ्त की एक बदनामी हमारे खाते में डाली जा रही है और लोग मुफ्त में हर रोज़ हज़ारों लाखों लोग हमारे ख़िलाफ़ शिकायत करते हैं, नाराज़गी का इज़हार करते हैं
PTI की हुकूमत से नाराज़गी का इज़हार करते हैं, उनको मौका ना मिले। लोग खाम खा एक साजिश के तहत ये प्लाज़ा कायम किया गया है, इसे ख़त्म किया जाए। ताजरों के साथ हैं हम, PTI की हुकूमत ताजरों के साथ है, और अगर इसे ख़त्म ना किया गया तो ताजरों के साथ मिल के मैं भी उनके साथ शामिल होऊंगा एहतजाज में, और इस प्लाजे को इंशाल्लाह हम हर सूरत ख़त्म करा के रहेंगे। फैसलाबाद के लोगों ने PTI पे जितना अतमाद किया था और जितनी सीटें फैसलाबाद से मिली थी, और किसी ज़िले से इतनी सीटें नहीं मिली, लेकिन उसके बाद एक मखसूस ग्रोह ने अवान वज़ीर-ए-आज़म के कब्ज़ा कर लिया हुआ है। साबिक सदर ममनून हुसैन की मुलाजमीन पर मेहरबानियाँ। साबिक सदर के दौरे सदारत में मुलाजमीन में खिलाफ ज़ाब्ता 9 करोड़ रुपए बांट डाले गए। तफसीलात इरफान मलिक से जान लेते हैं। इरफान, किस मद में ये पैसे बांटे गए थे? बतौर एजाजिया 5 वर्षों के दौरान सदर ममलिकत ममनून हुसैन जो कि साबिक सदर है, उन्होंने ये एजाजिया दिया। मुख्तलिफ त्योहारों पर और अहम मौके पर ये एजाजिया दिया जाता रहा। जैसे कि साल 2017 और 18 के दौरान ईद कुर्बान पर 90 लाख रुपए बतौर ईदी दिए गए। सीरत कॉन्फ्रेंस और योम कायद पर 88 लाख रुपए एजाजिया दे दिया गया, जो मुलाजमीन ने हिस्सा लिया था इसके इनेकाद में। और इसी माली साल के इख्तिताम पर मजीद 1 करोड़ 74 लाख रुपए एजाजिया दिया गया। साल 2016 में योम आज़ादी का त्यौहार था, जिस पर 73 लाख रुपए एजाजिया दिया। इसी तरह 2016 में योम कायद पर 78 लाख रुपए बतौर एजाजिया दिए। मजमूई रकम 9 करोड़ रुपए की बनती है, जो सदर मुमलिकत की तरफ से मुलाजमीन को एजाजिया दिया गया। और ये तमाम का तमाम एजाजिया खिलाफ कानून और खिलाफ ज़ाब्ता दिया गया। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने साबिक चीफ जस्टिस के ट्वीट के काश में बलोच होता पर तबसरा करते हुए ट्वीट किया कि काश आप सिर्फ जज होते जो सिर्फ अल्लाह से डरते, अपने काम से काम रखते, जो खौफ का शिकार ना होते, जो ना तकब्बुर करते, ना डैम बनाने का ड्रामा करते। काश आप ऐसे होते कि आज मुल्क सुनामी के नाम पर इस तबाही से दो चार ना होता। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने साबिक चीफ जस्टिस के ट्वीट के काश में बलोच होता पर तबसरा किया और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा काश आप सिर्फ जज होते जो सिर्फ अल्लाह से डरते, आप काम से काम रखते, जो खौफ का शिकार ना होते, जो ना तकब्बुर करते, ना डैम बनाने का ड्रामा करते। काश आप ऐसे होते तो आज मुल्क सुनामी के नाम पर इस तबाही से दो चार ना होता। और आसिफा भुट्टो भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शामिल हो गईं। आसिफा भुट्टो मुल्तान में होने वाले PDM के जलसे में शिरकत करेंगी। आसिफा भुट्टो मुल्तान जलसे से खिताब करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं बिलावल भुट्टो कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बायस मुल्तान जलसे में शरीक नहीं हो रहे। आसिफा भुट्टो भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शामिल हो गई हैं। आसिफा भुट्टो मुल्तान में होने वाले PDM के जलसे में शिरकत करेंगी, जबकि आसिफा भुट्टो मुल्तान जलसे से खिताब भी करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बिलावल भुट्टो के बारे में उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट चूँकि उनका मुस्बत है, जिसके बायस वो मुल्तान जलसे में शरीक नहीं होंगे। एडिटर रोही जमशेद रिजवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद, बताइएगा, बिलावल भुट्टो तो शिरकत नहीं कर रहे, लेकिन आसिफा भुट्टो मैदान में आ चुकी हैं। जी बिल्कुल, ये बात कंफर्म की है साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी के वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज गैर रस्मी सी गुफ्तगू की सीनियर जर्नलिस्ट के साथ। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम यकीनन ये सरप्राइज दे सकते हैं कि आसिफा अली जरदारी मुल्तान के जलसे में शरीक हों और वो खिताब भी करें। तो यकीनन ये जनूबी पंजाब में और खासतौर पे इस इलाके में तो उनकी पहली बड़ी एंट्री होगी आसिफा अली जरदारी भुट्टो जरदारी जो हैं। तो यकीनन हम देख सकते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के कारकुनों में एक नया जोश देखा जा सकता है कि आसिफा की पहली आमद और इस तरीके से बड़े इवेंट से खिताब, और वो भी यौम तासीस पर। तो ये एक बहरहाल उन्होंने जैसे यूसुफ गिलानी साहब ने इसको इस अंदाज में कंफर्म किया कि यकीनन हम आसिफा जरदारी की हम एंट्री की का सरप्राइज दे सकते हैं। ये उनका कॉटन कोड जुमला था। जी ठीक है जमशेद रिजवानी, बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत तेज़। वज़ीर आला और काबीना के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। मज़ीद तफसीलात अवैस कयानी से जान लेते हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में जो कानून हुकूमत साजी का जो मामला है उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक आला सतह का इजलास बुलाया है, जिसमें वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के जो
امیدوار ہیں ان کو جو ہے حتمی شکل دی جائے گی. ان کے ناموں کا جو بیرسٹر خالد خورشید ہیں اور فتح اللہ خان کے نام جو ہے وہ سی ایم کے لیے شامل ہے, جو کہ تفصیلات جو 24 نیوز کو حاصل ہوئی ہیں, جو کیبنٹ کے حوالے سے متوقع وزراء میں جو ہے وہ سہیل عباس کو بورڈ آف ریونیو, شمس لون کو وزارت خوراک کا قلمدان دیے جانے کا امکان ہے. اس کے ساتھ جو جاوید منامہ ہیں ان کو خزانہ, وزیر کلیم ہیں ان کو ورثہ قلمدان دیے جانے کا امکان ہے, اور راجہ ناصر عباس کو سپورٹس, کلچر اور سیاحت کے قلمدان دیے جانے کا امکان ہے. راجہ محمد زکریا خان کو زراعت, حاجی شاہ بیگ کو جنگلات اور جنگلی حیات کے قلمدان دیے جانے کا امکان ہے, اور راجہ اعظم کو تعلیم کی وزارت مل سکتی ہے. اور اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے آج جو اجلاس جو طلب کیا ہے اس میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی اور اس پہ حتمی جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا. جی اویس, بہت شکریہ. جعل سازی سے پراپرٹی کے انتقال اور خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام. سابق وفاقی وزیر محسن شاہ نواز کے والد شاہ نواز رانجھا پر اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر کے گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی. محسن شاہ نواز, بھائی حسن شاہ نواز اور ان کی والدہ کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے. جعل سازی سے پراپرٹی کے انتقال اور خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام سابق وفاقی وزیر محسن شاہ نواز کے والد شاہ نواز رانجھا پر اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر کے گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی. سندھ میں کرونا کی دوسری لہر خطرناک. ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت نے محکمہ صحت میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. 5 بڑے اسپتالوں میں فوری پیرامیڈیکل سٹاف بھرتی کرنے کی منظوری دی گئی. کانٹریکٹ پر بھرتیوں کے اختیارات اسپتالوں کے ایم ایس کو مل گئے. مزید تفصیلات آزاد نوریو سے جان لیتے ہیں. جی آزاد, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, سندھ میں کرونا وبائی دوسری خطرناک لہر کے پیش نظر سندھ سرکار نے بالکل اس وبا سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا. اس حوالے سے سندھ سرکار نے صوبے بھر میں تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی منظوری کے بعد سندھ سرکار نے فوری طور پر سندھ کے 5 بڑے اسپتالوں میں میڈیکل و پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے کانٹریکٹ کے بنیاد پر بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ان اسپتالوں میں سول اسپتال کراچی, سندھ گورنمنٹ سروس اسپتال جو ہے کراچی, لیاری جنرل اسپتال کراچی, اس کے علاوہ سول اسپتال حیدرآباد اور غلام احمد مہر میڈیکل کالج و اسپتال سکھر شامل ہے, جہاں پر فوری طور پر ملازمین کی بھرتیاں کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. اس حوالے سے تمام جو ان اداروں کے جو سربراہ ہے وہ مقامی سطح پر. جی آزاد نوریو, بہت شکریہ. وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اجلاس ہوا, جس میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. این سی او سی کے مطابق کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.20% تک پہنچ گئی. صبا وزیر سے تفصیلات جانتے ہیں. صبا, بتائیے گا. جی بالکل, نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں مارننگ سیشن کا اجلاس جو اسد عمر کی زیر صدارت ہوا, اور اجلاس کے دوران ملک بھر میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا, اور اس میں صوبوں کی چیف سیکریٹریز کی ویڈیو لنک کے ذریعے بھی شرکت کی گئی. اور اجلاس میں وفاقی وزیر اسد عمر کو جو بریفنگ دی گئی اس میں بتایا گیا کہ ملک بھر میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.20% ہے, اور اس وقت پشاور میں مثبت کیسز کی شرح سب سے زیادہ 19.65% تک پہنچ گئی ہے. این سی او سی کی بریفنگ کے بتایا گیا کہ کراچی میں 17.73 اور حیدرآباد میں مثبت کیسز کی شرح 16.32% تک جا پہنچی ہے, اور اس وقت ملک بھر میں 2112 مریضوں کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے. اور کورونا ٹھیک ہے صبا, بہت شکریہ. کراچی کی تاجر برادری نے کاروبار رات 8 بجے تک کھلے رکھنے کو خوش آئند قرار دے دیا. آل کراچی گروسرز ایسوسی ایشن کے صدر فرید قریشی کا کہنا ہے اس فیصلے سے دکانوں پر رش بھی نہیں ہوگا اور عوام ضروریات زندگی کی چیزیں بآسانی خرید سکیں گے. محمود ریاض سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. محمود ریاض, بتائیے گا. سندھ حکومت نے تاجروں کا ایک انتہائی اہم مطالبہ مان لیا ہے کہ کاروبار جو ہے وہ رات 8 بجے تک کھلا رکھا جا سکتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کراچی گروسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین فرید قریشی ہیں. بہت زیادہ اضطراب پایا جاتا تھا تاجروں میں کہ صبح 6 سے شام 6 بجے تک. کیسے دیکھتے ہیں جو حکومت نے فیصلہ کیا؟ دن میں جو لوگ ہیں وہ آج کل سردیاں ہیں, اسکول بند ہیں, تو لوگ جو ہیں وہ دیر سے اٹھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر جب وہ 5 اور 6 بجے کے درمیان مارکیٹ میں پہنچتے ہیں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ اس کو سنبھال نہیں سکتے, اور کوئی لوگ خریداری بھی نہیں کرتے. اس لیے کہ دکان کا بھی وہی, آفس کا بھی وہی ٹائم ہے, دکان کا بھی وہی ٹائم ہے, جس سے لوگوں کو مختلف
असरात होते हैं और एक मार्केट में फिर वही रश शुरू हो जाता है। लोग मास्क पहने और उसके बाद दुकान के अंदर जाएं, लोगों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। ये मसाइल जो है उसको खुद आवाम को भी चाहिए, दुकानदार को भी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि उस पे करे। और ये तरीक़ाकार गलत है कि दुकानदार अगर वो 5 मिनट लेट हो जाता है तो 50,000 रुपये जुर्माना जो है ये जायज़ नहीं है। जैसे कि फरीद कुरैशी का कहना था कि 8 बजे तक का जो वक्त किया गया ये एक ऐसा इकदाम है और SOPs को मद्देनजर रखते हुए जितनी रिलैक्सेशन कारोबार के लिए दी जा सकती है वो जरूर देनी बहुत चाहिए। शुक्रिया। क़बायली इस्लाम में ऑनलाइन क्लासेस तलबा 3 और 4G की बहाली के लिए पेशावर प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज बन गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़मत अली शाह से। अज़मत, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं तलबा के? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर प्रेस क्लब के सामने। आप मेरे अकब में देख सकते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स, कबायली अजला के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका एहतजाज जो है वो इस बात पर है कि कोरोना की वजह से उनके जो क्लासेस जो हैं वो डिले हो गए हैं, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में उनके क्लासेस नहीं लग रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम किया गया। लेकिन कबायली अजला में कहीं पर भी 3G 4G का सिस्टम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनके तालीम का ज़िया हो रहा है, उनकी जितने भी तालीमी साल है उसका ज़िया हो रहा है। उनका यही एक मुतालबा है कि उनके लिए 3G 4G जो है उसके एहतमाम किया जाए और तमाम कबायली अजला में जो 3G 4G सर्विस है उसको बहाल किया जाए। साथ साथ उनका ये कहना है कि उनके मुतालबात नहीं माने गए तो अगले हफ्ते जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने एहतजाज देने पर। बहुत शुक्रिया। अब बे फॉर्म के बगैर सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं मिलेगा। बे फॉर्म का इंदराज महकमाना पॉलिसी में मुस्तकिल तौर पर शामिल कर दिया गया। दाखिले के वक्त स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ऑनलाइन एंट्री करना होगी। अब बे फॉर्म के बगैर सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं मिलेगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जुनैद रियाज से जान लेते हैं। जुनैद रियाज, बताइएगा। जी, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ने अपना नया वर्जन लॉन्च कर दिया 5.2.7, जिसमें बे फॉर्म की शर्त जो है वो लाजमी जो है वो कर दी गई है और इसमें ऐसा खाना शामिल किया गया है कि बच्चे का दाखिला जो है वो बे फॉर्म के बगैर किसी सूरत नहीं होगा। और अब जो भी बच्चा सरकारी स्कूल में दाखिल होगा उसका पहले बे फॉर्म का इंदराज जो है वो करना लाजमी होगा। और ये इस एप्लीकेशन है जो कि अपने मोबाइल के जरिए भी टीचर जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे और जब ही बच्चा स्कूल दाखिल होने के लिए आएगा असातिज़ा अपने मोबाइल के जरिए बच्चे का बे फॉर्म जो है ऑनलाइन दाखिल करेंगे और उसी सूरत में जो है वो बच्चों के दाखिले जो है वो मुमकिन हो सकेंगे। क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में असातिज़ा की रिक्रूटमेंट और असातिज़ा के तबादले जो है वो बच्चों की तादाद के मुताबिक जो है वो स्कूलों में की जाएगी और उन्हीं बच्चों को कंसीडर किया जाएगा जिनके बच्चों के बे फॉर्म का इंदराज हुआ होगा। जो बच्चे बे फॉर्म का इंदराज नहीं हुआ होगा वो बच्चे जो है वो। जी जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया। कावन हाथी के बाद चिड़ियाघर के 2 रीछों को भी बैरून मुल्क मुंतकिल करने की तारीख तय हो गई। दोनों रीछों को 6 दिसंबर को उर्दन मुंतकिल किया जाएगा। एहतशाम कियानी से तफसीलात जानते हैं। जी एहतशाम। देखिए, ये मिस्री एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आमिर खलील और उनकी टीम जो पाकिस्तान आई थी और उन्होंने चिड़ियाघर के जानवरों की देखभाल करनी थी, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में पेश होकर डॉक्टर आमिर खलील ने अदालत को बताया कि 29 नवंबर को कावन हाथी को कंबोडिया मुंतकिल किया जाएगा, जबकि 6 दिसंबर को चिड़ियाघर के दोनों जो ब्राउन बियर्स हैं उनको जॉर्डन मुंतकिल कर दिया जाएगा। केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने की और जो मिस्ट्री एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आमिर खलील, उनके साथ जर्मन एक्सपर्ट फ्रैंक गोर्डेंस और दीगर अदालत के रूबरू पेश हुए और चीफ जस्टिस ने उनकी पूरी टीम का जानवरों की देखभाल पर शुक्रिया अदा किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान भी जानवरों की देखभाल कर सकता था। ठीक है एहतशाम, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद चिड़ियाघर के कावन हाथी को कंबोडिया मुंतकिल करने के इंतजामात मुकम्मल हो गए। कावन का कंबोडिया की तरफ से जारी परमिट मौसूल हो गया। हिफाजती सामान और नया केज भी चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया है। मजीद तफसीलात रोजीना अली से जान लेते हैं। रोजीना, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद चिड़ियाघर के अंदर मौजूद हूँ। कावन का कंबोडिया से जो परमिट जारी हुआ था वो पाकिस्तान में रिसीव हो गया और पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोर्ट परमिट और एनओसी जिसको हम कह सकते हैं कि वो भी जारी हो चुका है और रिसीव भी हो चुके हैं दोनों परमिट यहाँ पर इंतज़ामिया को। कावन को 29 नवंबर को यहाँ से सुबह सवेरे रवाना कर दिया जाएगा कंबोडिया के लिए और कावन का जो नया केज तैयार किया गया है वो भी यहाँ पर चिड़ियाघर में पहुँचा दिया गया है। ये केज बिल्कुल मेरे पीछे है। इससे पहले जो केज बना था उसमें कावन को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि जब कावन को कंबोडिया रवाना किया जाएगा तो उसके लिए ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इस नए वाले केज पर नक्शो निगार भी किया जा रहा है। फ़नकार स्टूडियो से आर्टिस्ट मौजूद हैं और वो इस वक्त नक्शो निगार कर रही हैं कावन के लिए। उनसे मैं कोशिश करती हूँ कि बात कर लूँ। कावन के लिए आप नक्शो निगार कर रही हैं, कावन के लिए फीलिंग्स क्या हैं और इस पर क्या बना रहे? इधर हम कावन का एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं उसकी फुल बॉडी का एनाटॉमी के साथ और बस उसके लिए बिट करें फेयरवेल। अच्छी बात है कि वो जा रहा है, उसका ख्याल रखा जाएगा। यही मेरा मैसेज है कि सैड होने की ज़रूरत नहीं है कोई इतनी खास। कावन को कंबोडिया में दीगर बहुत से जो साथी हैं वो भी मिल जाएंगे। कावन जो है इस वक्त भी अपनी ही धुन में मगन है और काफ़ी एक एक्साइटमेंट वाला भी यहाँ पर माहौल नज़र आता है। और यहाँ पर जो है इस्लामाबाद चिड़ियाघर में तो तमाम तरह इंतज़ामात मुकम्मल हैं। कुछ ये ज़रूरी सामान है जो यहाँ पर पहुँचाया गया है, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये कावान के जो क्रेट है जिसमें हमने उसको शिफ्ट करना है, जिसमें उसको ट्रांसपोर्टेशन होगी, उस क्रेट की कुछ नेसेसिटीज़ हैं जिसको हम नीड करेंगे उसकी जाने में, यहाँ से भेजने में। ये सब उसके काम में आएगा। ये स्ट्रैप्स हैं जिससे हम उसको टाइटन करेंगे जहाँ पर हमें उसको करना है। और इसमें बहुत सी चीज़ें उसके खाने के लिए, जैसे यू कैन सी दिस वाटर पाइप, ये उसको वाटर देने के लिए, वाटर सप्लाई देने के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टीप होल्स हैं और छोटे हैं उसके लिए, क्योंकि कावान डिस्टर्ब ना हो किसी भी तरह से, उसकी हर चीज़ का पूरा ख्याल रखा हुआ। और इस केज के अंदर जो कावन को बेल्ट्स लगा के फिर वो भेजा जाएगा, वो इसलिए ताकि उसकी मूवमेंट ना हो, क्योंकि प्लेन में अगर मूवमेंट होगी तो वो फ़्लाइट के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये अभी आप सारा वो अंदर सेट कर लेंगे? जी एग्जैक्टली। ठीक है, तो क्या मैसेज क्या देंगे कावन के लिए सोसाइटी को? बहुत सारे लोग उदास भी हैं कि कावन को यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए। अब आप साथ साथ काम भी करेंगे तो आप ख़ुद भी उदास हैं या नहीं, क्या कहते हैं? डेफिनेटली उदास हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये फील आती है कि कुछ दिनों में ख़त्म होने वाला है सब कुछ, हम यहाँ पे नहीं होंगे और ये भी चला जाएगा। और लेकिन ये है कि ही डिज़र्व्स अ बेटर प्लेस। इन शॉर्ट, ही डिज़र्व्स अ बेटर प्लेस। तो आपने सुनी और उन्होंने ये तमाम तरह सामान हमें दिखाया क्योंकि ये कावन के लिए बहुत ज़रूरी है। जी रोज़ीना, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करके अब मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी खाना और नाश्ता होटल से मंगवाने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सर्दी के आगाज़ के साथ ही रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ इलाकों में गैस की किल्लत शुरू हो गई है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के कासमाबाद के इलाके में और आप देख सकते हैं कि गैस ना होने की वजह से ख़वातीन जो है वो सिलेंडर के ऊपर अपना कुकिंग वगैरह करने में मसरूफ़ है। सुबह का नाश्ता हो, दिन का खाना हो या रात का खाना हो, गैस ना होने की वजह से सिलेंडर पर ही खाना पकाया जाता है। हम बात करते हैं, महीना डेढ़ हो गया गैस तो नहीं आ रही, दिन को तो सारा दिन ही नहीं रहती। लोग कहते हैं कि 2-2:30 बजे की रात को आती है, वो हमें नहीं पता। हमने तो यही सिस्टम किया हुआ, देख लें। गैस ना होने की वजह से सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। आप मुझे ये बताएं, गैस का बिल कितना आता है? गैस का बिल तो जी 7,000, 8,000, 10,000 तक आता है, लेकिन जो है ना गैस नहीं मिलती है। गैस दिन को जाती है, शाम तक सिलेंडर जो है, पहले गैस 120 रुपये किलो थी, अब 150 रुपये किलो मिल रही है। आवाम का इस हवाले से ये भी कहना है कि सिलेंडर की गैस जो पहले 120 रुपये किलो में रावलपिंडी में मुयस्सर थी, अब 150 रुपये किलो मुयस्सर है और इनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं क्योंकि गैस ना होने की वजह से। उस्मान, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के मराकज़ सेहत में बच्चों को हिफाजती वैक्सीन न लगाने का इंकशाफ हुआ है। पोलियो, खुन्नाक, काली खांसी, गर्दन तोड़ बुखार समेत 10 मोजी अमराज की हिफाजती वैक्सीन नायाब हो गई। बुनियादी मरकज़ सेहत 554 गाफे में भी हिफाजती वैक्सीन मौजूद नहीं, मगर वैक्सीनेटर ने बोगस रिपोर्ट तैयार कर ली। मजीद जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, आगाह की जगह में। जी बिल्कुल, तहसील तांदलाना में वाक़या 554 गाह पे बुनियादी मरकज़ सेहत में वैक्सीनेटर्स की जानिब से जो वैक्सीन थी वहाँ पे मौजूद नहीं थी और इसकी जो इतला थी वो तो अफसरान को दी गई
اور جبکہ دوسری جانب ویکسین تو موجود نہیں تھی مگر ویکسینیٹر کی جانب سے بوگس انٹریوں کا جو تھا وہ اندراج کیا جا رہا تھا، جس پر جو ہے وہ نوٹس لیا گیا۔ ہمارے ساتھ COL فیصل آباد ڈاکٹر مشتاق سپرا صاحب موجود ہیں، ہم سے جانتے ہیں۔ سر بتائیں بچوں کے ٹھیک ہے عزادات، بہت شکریہ۔ اور ابھی اسلام آباد سے آپ کو بتائیں، اس سے پہلے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا تھا، ایک شخص جو درخت پر چڑھ گیا تھا اور اس کا مطالبہ تھا، کچھ مطالبات تھے، اس کو بحفاظت نیچے اتار لیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلتے ہیں اسلام آباد سے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ریسکیو عملے نے اس شخص کو درخت سے نیچے اتار دیا ہے۔ بزرگ شخص تھے جو کہ اپنے مطالبات کے لیے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور ریسکیو عملہ اور پولیس حکام ہیں اس سے بات چیت کر رہے تھے، اور اب ریسکیو عملے نے کرین کے ذریعے بحفاظت اس شخص کو نیچے اتار دیا ہے، جس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس موقع پر ریسکیو ٹیمیں موجود تھیں، پولیس حکام موجود تھے اور اس شخص سے بات چیت کر رہے تھے، اس سے معاملات طے کر رہے تھے اور نیچے اترنے کا کہا جا رہا تھا، اور اب اس شخص نے بات مان لی ہے۔ ریسکیو عملے نے کرین کے ذریعے درخت سے اس شخص کو نیچے اتار دیا ہے، جس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوات کے یہ رہائشی ہیں جو درخت پر چڑھے تھے اور ان کا مطالبہ تھا کہ ایاز صادق کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹایا جائے، اور اب کافی کوششوں کے بعد ریسکیو اہلکاروں نے انہیں درخت سے نیچے اتار لیا ہے۔ درخت سے نیچے اتارنے کے بعد کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ کافی دیر بزرگ شخص جو تھے وہ درخت پر تھے اور اسی بات کا خطرہ تھا کہ وہ نیچے نہ گر جائیں، لیکن انہیں ریسکیو ٹیم نے بحفاظت درخت سے نیچے اتار لیا ہے۔ نیشنل پریس کلب کے باہر درخت پر چڑھے ہوئے شخص کا کہنا تھا کہ اگر ایاز صادق کو گرفتار نہ کیا گیا تو چھلانگ لگا کر خودکشی کر لوں گا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایاز صادق نے ملک کے خلاف بیانات دیے ہیں جس پر ان کو گرفتار کیا جائے۔ سوات کا یہ شہری تھا جو کہ سردار ایاز صادق کی گرفتاری کا مطالبہ لیے درخت پر چڑھ گیا تھا۔ اس موقع پر ریسکیو ٹیمیں موجود تھیں اور پولیس حکام موجود تھے۔ کرین کے ہمراہ اس شخص کو نیچے اتار لیا گیا ہے۔ بلال ورک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال بتائیے گا اس حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، وہ فضل یوسف کو جو ہے وہ مجسٹریٹ اور دیگر پولیس اہلکاروں کے ساتھ جو ہے کرین کی مدد سے جو ہے اس کو نیچے اتار دیا گیا ہے، اور اس وقت جو ہے اسے قریبی ہوٹل پہ لے کے جایا جا رہا ہے جہاں پہ اس کو ناشتہ کرایا جائے گا میجسٹریٹ کی جانب سے، اور یہاں پہ وہ ایزیلی جو ہے وہ مان گیا تھا اور اس نے جو ہے میجسٹریٹ کی بات مانی۔ میجسٹریٹ نے جو ہے اسے یقین دہانی کرائی کہ آپ کے جو بھی مطالبات ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے حل کیے جائیں گے، آپ پلیز نیچے آ جائیں، جس کے بعد جو ہے اس نے کرین میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا اور کرین کی مدد سے جو ہے اس کو نیچے اتار دیا گیا ہے۔ کرین کی مدد سے نیچے اتار لیا گیا ہے۔ بلال بہت شکریہ۔ سوات کا یہ رہائشی ہے جو کہ مطالبات کے لیے درخت پر چڑھ گیا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔